कुमार बेहरा। परे परे आम शहीद बीएम बेहरांकर धर्मपत्नी जूली बेहरा को मंचरे स्वागत करिबु। On the 27th October 2018, the Maoists waiting in an ambush blasted powerful IED and followed it by indiscriminate firing. The vehicle came under the impact of the blast and its occupants sustained severe injuries. But despite sustaining injuries, the troopers held to their weapons and fired at the Maoists. The retaliation from the injured troopers forced the Maoists to abort their plan of looting the weapons. And due to the impact of heavy IED blast, the CRPF vehicle and CRPF personnel, including Shahid BM Behra, attained martyrdom. And the wife of BM Behra, Julie Behra, is being felicitated by our honorable ministers. Shahid Pankaj Mahanti, Tankara Dharmapatni Arati Mahanti को आमे स्वागत करिबु। शहीद पंकज महांती आपण माने जानिबे शहीद पंकज महांती जे कि देश मातृका पई बलिदान देइछंती एवं जेभଳି भाबरे निजको संपूर्ण भाबे उत्सर्ग करि नैछंती। On 19th June 2010, troops of 39th Battalion CRPF carried out road opening patrol under Narayanpur for safe movement of administrative troops in the area. After the completion of the task, the parties were ordered to return to their bases. One such party, when was near Maharabad village, was ambushed by the Maoists, and in that, Shahid Pankaj Mahanti sacrificed his life in the line of duty. And the wife of Pankaj Mahanti, Madam Arati Mahanti, is felicitated. परे परे शहीद दीनबंधु मल्लिक तंकर धर्मपत्नी चारुलता मल्लिक को आमे मंचरे स्वागत करिबु। On 12th April 2002, militants, advantage of thick population and congested area, fired a rifle grenade at a CRPF camp located at a house near SMHS Hospital of Srinagar. The grenade fell near the dining hall of the camp and blasted. In the blast, 10 brave CRPF personnel who were present in the mess sustained injuries. Immediately, the area was cordoned and searched, but nothing could be recovered. Later, out of the 10, 3 troops, namely Shahid Dinabandhu Malik, Shahid Upendra Kumar Bhoi, and Shahid Holkar Madhukar Sharmrao, succumbed to their injuries and attained martyrdom. Dinabandhu Malik's wife, Charulata Malik, is felicitated by our honorable minister. परे परे शहीद भिके भोई तंकर धर्मपत्नी सरोजिनी भोई को आमे स्वागत करिबु। शहीद भिके भोई सरोजिनी भोई तंकर धर्मपत्नी को स्वागत करुछु। On 19th April 1988, the CRPF convoy was greeted by a hail of precision gunfire, and before they could react, 5 of them were mowed down. The remaining 5 were burned to death as grenade just put the jeep on flame, and it was such a professionally executed attack that the men barely had the opportunity to react. Some of the currency was burnt and some were carried away by the rebels. 10 CRPF personnel, including Shahid Vijay Kumar Bhoi, just supreme sacrifice of their life in the line of duty, made supreme sacrifice of his life in the line of duty. शहीद भिके भोईंकर धर्मपत्नी सरोजिनी भोई को बरेण्य अतिथि द्वारा मैं अभिनंदन जनाऊँ एवं शहीद परिवार वर्ग सबु बेले शहीद त्याग तितिक्षा एवं बलिदान को नहीं गर्व करिवार यथेष्ट कारण रही आम अभिनंदन जनाऊँ कार्यक्रम माध्यम एवं परिशेष
शहीद मनोरंजन लेंका जहाँकर माँ कुमकुम लेंका आज आम सहित उपस्थित रही शहीद माता को आम श्रद्धा और सम्मान सहित मंच रे स्वागत करूँ। आपण मन को कही रखिबू on 13th April 2018 for mutual support to SP Sukumar along with other police officers and troops of 208 Cobra Battalion who have left the Eastern camp at 11:35 hours. The MP vehicles had covered a distance of about 3 kilometers when the fast MPV, which was just crossing over the diversion on Kasaram Nala, was blasted with a powerful IED followed by heavy firing on small arms and country-made improvised rockets at both the blasted MPV as well as on the second MPV, two from the right side of the road. In above incident, Shahid Manoranjan Lenka sacrificed his life in the line of duty. And his proud mother is with us to receive the appreciation note, bouquet and love from all of us on behalf of all of us from Honorable Minister. शहीद का परिवार से धर्मपत्नी हूँ आत्मीय स्वजन हूँ माँ हूँ समस्त को संबर्धना दे आम निश्चित रूपे गौरवान्वित एवं महात्मा भाषण महात्मा कषण ए जगते केबे नुहे अकारण शहीद्र बलिदान केबे भी व्यर्थ जीवन ही यही चेतना को आज ग्रहण करी आमे से परिवार को गभीर समवेदना जणाइबा सहित ए राष्ट्र ए देश सेमानक सहित अच्छी ए उद्घोषणा आमे करूछु। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट esteemed Sri Pukhraj Jaipal, DIG CRPF Odisha sector, who is with us, and I take the privilege to request you, sir, to kindly address the congregation. आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री भारत सरकार, एवं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार, उत्कल यूनिवर्सिटी के कुलपति, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना भुवनेश्वर के क्षेत्रीय निदेशक, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, मेरे मीडिया बंधु, मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को भारत सरकार द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम, जिसमें इन सभी वीर और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और हमारे कल के लिए आज उन्होंने अपना आज त्याग दिया। मैं शामिल कार्यक्रम में मुझे शामिल होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे देश के वीर शहीदों के सम्मान में उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए नेहरू युवा संगठन एवं उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के जवानों की वीरता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। देश के सैनिक हमारी जान है, हमारी शान है। ये पल देश के प्रत्येक इलाके में चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, हमारे जवान सुरक्षा में कभी भी आंच नहीं आने देते, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं। इनकी वीरता के कारण कोई भी दुश्मन आंख उठाकर हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं उठा सकता। देश की सुरक्षा में हमारे वीर एवं बहादुर जवान हमेशा तैनात रहते हैं और सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसका आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है, को हमेशा मद्देनजर रखते हुए राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आतंकवाद, उग्रवाद, विद्रोही एवं विघटनकारी तत्वों से निपटने में
इस बल को विशेष महारत हासिल है। रैपिड एक्शन फोर्स, महिला बटालियन, वीआईपी सुरक्षा दस्ता और बाकी अन्य फोर्स के जो अंग हैं वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सदैव तत्पर हैं। वर्तमान में ये बल 246 बटालियन और 106 अन्य इंस्टीट्यूशन के साथ लगभग 3.25 लाख की फोर्स के साथ में विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव इस बल को प्राप्त है। बल के जवानों की शहादत के लिए राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। उनका बलिदान हमें अपने कर्तव्य पर डटे रहने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ उपस्थित शहीदों के परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमेशा आपके साथ खड़ा है। उनके कल्याण संबंधी कार्यों के लिए हम सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध हैं। मैं देश के लिए कुर्बान शहीद हुए तमाम अमर शहीदों को एक बार सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। We are extremely thankful to Sri Pukhraj Jaipal ji, esteemed DIG CRPF, Odisha sector, for his inspiring address. आम सहित उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति मैडम प्रोफेसर सविता आचार्य महोदय उपस्थित रही। मैडम को संपर्क में आपण मान विशेष किसी कहबार अर्थ माँ आगे मामू घर कथा कहला भली एवं ओडिशावासी को दारुब्रह्म श्री जगन्नाथ संपर्क में कहला परी हेब। ए विश्वविद्यालय आंथ्रोपोलोजी विभाग रे अध्यापना सहित स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्षा एवं परवर्ती समय कुलपति पदरे अभिषिक्ता हुई विश्वविद्यालय को एक गरिमामय स्थिति को नेबारे एवं जातीय स्तर में अंतर्जातीय स्तर में उत्कल विश्वविद्यालय गौरव को प्रख्यापन करिबारे जे विशेष भाव में यत्नशील हुई आछंती प्रोफेसर सविता आचार्य माननीय कुलपति महोदय को आपण मानकर करताली रे स्वागत करने सहित निवेदन करिबो आसर को संबोधित करबा पई। समस्त को नमस्कार। Esteemed members on the dais, Honorable Sri Dharmendra Pradhan, Union Cabinet Minister for Education, Skill Development and Entrepreneurship, and the proud alumnus of Utkal University, and Sri Anurag Singh Thakur ji, Union Cabinet Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Sri Pukhraj Jaipal, DIG CRPF Odisha Sector, Ms. Hani Sinha, State Director, NYKS Odisha, Ms. Sarita Patel, Regional Director, NSS Odisha, and all my faculty colleagues, officials from NSS, Utkal University, from Ministry of Education, from Ministry of Sports, from all the university, colleges, school, and all the media persons, ladies and gentlemen. This program, as an outset, I feel honored and proud to be the part of a great campaign, Meri, Maati, Mera. This campaign is being conducted in our campus of Utkal University, the oldest state university of Odisha, and I welcome on behalf of Utkal University and on my own behalf the two distinguished honorable union ministers of India. It is indeed a proud moment for me to welcome two distinguished union ministers of Government of India. So sincerely I welcome and thank the Ministry of Education and Ministry of Youth Affairs and Sports and all the organizers of Nehru Yuva Kendra Sangathan, NSS, and organizers from the state, and our faculty and student members of Utkal University for organizing and conducting this event here in Utkal University
within a very short time period. This campaign is envisaged from 9th August 2023 as a culminating event of Azadi Ki Amrit Mahotsav commemoration. Meri, Maati, Mera envisions a unified celebration of India's soil and valor. Like Mitti Ko Naman, Biro Ko Bandhan, commemorating the nation's journey of freedom and progress. So by connecting with the land, by honoring our heroes, this program will instill a sense of national pride and inspire the future generations to protect India's heritage. A fundamental aspect of the program is to express the heartfelt gratitude by giving a tribute to all the brave hearts, bears and biranganas. We have made the supreme sacrifices. Now we have seen that all the Biraj and Birangan, they have been felicitated by our honorable ministers. So on this Sila Pakhatam, the names of the bravehearts shall be inscribed, and these shall include the freedom fighters, the defense personnel, the personnel of Central Armed Police Force, State Police, who laid down their lives in the line of duty. So at the memorial site, all students, they can take a solemn pledge covering Panch Pran, affirming their commitment to the country to make India a developed country. It can eliminate the mentality of slavery and be proud of our rich heritage, uphold unity and solidarity, and fulfill until as citizens and respect those who protect the nation. So an Amrit Kalash Yatra was conducted, and it carries soil from all corners of the country of 7,500 Kalas who created a Amrit Bhatika in Delhi. The Amrit Bhatika will symbolize the commitment to Ek Bharat, Shresth Bharat. So, lastly, I convey my sincere thanks to one and all present here, all student friends, all fellow colleagues, all alumni, each and every member of the family of Utkal University, the media persons, officers from ministry, officers from NYKS, all the well-wishers for being a part of this event. We all proud of and honored to be the part of this great campaign, Meri Maati, Mera. At last, I convey my wholehearted thanks to all again, and I welcome all, one and all who are inside the room for this yatra. And this is a noble occasion. We should join our hands. Bande Utkal Janani, Jai Hind. We are extremely grateful and thankful to Madam Professor Shabita Acharya, esteemed Vice Chancellor of Utkal University, for her wonderful and touching address. We are very much honored with the gracious presence of Honorable Minister of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, esteemed Sri Anurag Singh Thakurji, whose gracious presence has added luster to this event. As you know, having been four-time member of Parliament, Sri Anurag Singh Thakurji has served the country as the Minister of State for Finance and Corporate Affairs. Besides, he was the President of the Board of Control for Cricket in India, BCCI, encouraging the Indian cricket team to leave a mark in the domain of sports and games in the country. At present, he is Honorable Minister, Information, Broadcasting with Youth Affairs and Sports, and has given a new leash of life
to the ministry. May I request you, sir, to kindly address the congregation, but prior to that, I would like to request to kindly administer Panchapran plays to the congregation. With a big round of applause, we welcome on stage Honorable Minister Sri Anurag Singh Thakur ji. भारत माता की, भारत माता की. Please rise to take the pledge with me. Please rise and take your right hand forward. We pledge to make India developed and self-reliant by 2047. We pledge to remove any trace of colonial mindset. We pledge to celebrate our heritage. We pledge to strengthen unity and respect those who protect the country. We pledge to perform the duties of a citizen. Jai Hind, Jai Bharat. जय जगन्नाथ. कुछ लोगों की आवाज तो आई. माता की. Shall I share a secret with you? Shall I share a secret with you? If you raise your one hand, just raise your one hand and say Bharat Mata ki. Now raise both your hands and say Bharat Mata ki. So whenever you say Bharat Mata ki jai, raise your both hands. So Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Vande. 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 मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट मंत्री बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्कल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सबिता आचार्य जी, डीआईजी सीआरपीएफ श्री पुखराज जयपाल जी, स्टेट डायरेक्टर एनवाईकेएस मिस हनी सिन्हा जी, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस मिस सरिता पटेल जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, and my young friends, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. Let me first thank the Vice Chancellor Utkal University and the NYKS State Director and NSS Regional Director for making this event a grand success. And with your presence, all I can say, look at the crowd and look at the courage of these young leaders who are in front of me and who are welcoming none other than the Education Minister of the India and who himself is an alumni of Utkal University, Shri Dharmendra Pradhan ji. भाई और बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 वर्ष भारत को हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आइए क्यों ना सब मिलकर हर देशवासी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाए। और पिछले 2 वर्षों में देश भर में लाखों कार्यक्रम किए गए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने स्वतंत्रता सेनानियों को जहां एक और याद किया, वहीं देश पे रक्षा सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले शहीदों को और उनके परिवारों को वहां पर बुलाकर सम्मानित किया, शहीदों को वंदन किया। आज जब मैं बाहर एक प्लेग का माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको समर्पित किया,
तो मेरे मन से यही निकल रहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों पर यही निशान होगा। और जब भी आप किसी शहीद स्मारक पर जाते हैं तो ये पंक्तियां आपको उन शहीदों के बारे में और उनके योगदान के बारे में आपको याद करवाती हैं। आज ऐसे 10 परिवार जहां पर किसी ने अपने पति को तो किसी ने अपने बेटे को खोया है, उन माताओं को, उन बहनों को जो हम सब के बीच में आए हैं, और सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, आपकी टीम उनको इस कार्यक्रम में लाई। सही मायने में अगर भुवनेश्वर में बैठकर हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं, तो ये तब संभव है अगर बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसे जवान, भारत माता के जवान देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहूंगा, अमर रहे, अमर रहे वीर जवान, अमर रहे। आप मेरे साथ कहेंगे, अमर रहे, 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 अमर रहे। भाई और बहनों, आखिरकार ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम क्यों? ये हजारों युवा जो मेरे सामने बैठे हैं, आपने अपने कैंपस में, अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में अमृत कलश यात्रा को लेकर क्यों चले? उसके पीछे भावना क्या है? भावना यही है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई और जो वीर सैनिक जिन्होंने देश को सुरक्षित रखा, उनको वंदन करना है। और जो भारत मां की ये मिट्टी जो 140 करोड़ भारतीयों को पेट भरने के काम भी करती है, अन्न पैदा करने का काम भी, और जिस मिट्टी की सौगंध को खाकर हर जवान देश के बॉर्डर पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है कि मां भारती को सुरक्षित रखेंगे, भारत मां को और यहां पर रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम की रचना की गई कि देश के हर गांव में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, अमृत कलश यात्रा लेकर जाएंगे और हर परिवार को कहेंगे चुटकी भर मिट्टी डाल दो, अगर मिट्टी नहीं तो थोड़े से चावल डाल दो। और आपका वो योगदान होगा जब देश के 6 लाख से ज्यादा गांव से 25 करोड़ से ज्यादा घरों से ये मिट्टी इकट्ठी करके आएंगे, तो देश के 7500 ब्लॉक्स पर एक कार्यक्रम होगा। ये अमृत कलश लेकर आप सब वहां पर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे। ये सारी मिट्टी उन 7500 कलश में डाल दी जाएगी और 7500 कलश लेकर 75,000 volunteers will travel from 7,500 blocks of the country to the national capital via state capital। यानी कि आप अपने ब्लॉक से निकलेंगे, अपनी राजधानी स्टेट कैपिटल जाएंगे और वहां से देश की राजधानी दिल्ली में आकर इस मिट्टी से क्या होने वाला है? एक तो आपके गांव में 75 ट्री सैपलिंग्स लगाने का काम करना है, दूसरा ब्लॉक लेवल पे 75 सैपलिंग्स लगाने हैं, और तीसरा देश की राजधानी में जब आप ये अमृत कलश लेकर आएंगे तो जहां पर इंडिया गेट बना है, जहां अमर जवान ज्योति सारा साल जलती है, जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर आजादी की मानसिकता से मुक्ति पाकर नरेंद्र मोदी जी ने अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी है। जहां अंग्रेज राज करने का, रूल करने की मानसिकता के साथ आए थे, उस राजपथ का नाम बदलकर अब आजादी के अमृत महोत्सव के समय सुंदर उसको बनाकर अब उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया है। हमारे देश में
राजधानी में कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं था, कोई पुलिस मेमोरियल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वीर शहीदों के लिए एक बहुत शानदार वॉर मेमोरियल भी इंडिया गेट पे बनाकर तैयार कर दिया है। पुलिस मेमोरियल भी दिल्ली में बना दिया है। और अब आप ये जो मिट्टी भेज रहे हो, ये माटी जो देश के गांव गांव से आ रही है, अब आजादी का अमृत महोत्सव मेमोरियल जो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनेगा, वो किसी चीज और से नहीं, आपके घर से आई हुई माटी से बनेगा, उड़ीसा की माटी से बनेगा, भुवनेश्वर के हर गांव गांव की माटी से बनेगा, उड़ीसा के हर गांव की माटी से बनेगा। तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। आपके ब्लॉक लेवल पर जब प्रोग्राम हो, आप भूल मत जाना, अपने गांव की, अपने घर की माटी को जरूर भेजना, ताकि भविष्य में जब आप आओ, अपने आप आओगे, अपने बच्चों के साथ आओगे, अपने माता पिता के साथ आओगे, तो देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर जरूर आना, कर्तव्य पथ पर जरूर जाना, और वहां पर शहीद स्मारक पर तो जाना ही, जो आपके घर से आई हुई माटी है, उसका आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत वाटिका के पेड़ भी वहां पर लग जाएंगे। तो खुश होकर कहना परिवार वालों से कि जब मेरे यहां पर अमृत कलश यात्रा आई थी, तो मैंने भी उसमें योगदान किया था, मेरे घर की माटी भी ये दिल्ली के स्मारक बनाने के काम आई है। देश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे यहां माननी पड़ेगी, धर्मेंद्र भाई, आप सही मायने में युवा नेता हो, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन देश के युवाओं को और उड़ीसा के युवाओं को माटी के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है, देश के इस कार्यक्रम के साथ कैसे जोड़ना है। अगर देश में सबसे सफल कार्यक्रम अगर किसी राज्य में हो रहे हैं, तो उड़ीसा में मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरुआत करके किया है। आज मैं रोज देखता हूं, मैं NYKS के डायरेक्टर महोदय से बात कर रहा था, कोई दिन ऐसा नहीं जब सोशल मीडिया पर उड़ीसा के कार्यक्रमों की पोस्ट ना आती हो। यह दिखाता है कि उड़ीसा का युवा देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कैसे तैयार है। मेरे युवा साथियों, हमें यही नहीं रुकना। इफ यू हैव noticed about the Panch Pran, the 5 pledges very clearly. पहला प्लज था भारत को विकसित भारत बनाना है, to make India a developed country by 2047. उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 5वां प्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। You have to play your duty, you have to do your duty. Not seek your rights only, but you have to obey your duties as well. लेकिन ड्यूटीज करने के लिए बीच वाले 3 प्रण, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बड़े इंपॉर्टेंट है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। अगर हम आज भी सोचेंगे कि अंग्रेज ही राज करते हैं, मुगलों का राज है, तो कुछ नहीं होगा। हमें तो 60-70 साल तक वही पाठ्यक्रम पढ़ाए गए, जहां दिखाया गया कि मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, अंग्रेजों ने ये कर दिया, लेकिन ये पढ़ाने में पीछे रह गए कि महाराणा प्रताप का कितना बड़ा योगदान था, या स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा योगदान था। आज वो कोई सुधार कर रहा है तो कोई और नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 इयर्स के बाद कोई लाए, तो नरेंद्र मोदी जी लाए, और इंप्लीमेंटेशन का काम उड़ीसा के सपूत धर्मेंद्र भाई के जिम्मे दिया है, देश भर में करवाने का। बट थर्ड प्लेज इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। अब क्या है, अंग्रेजों ने, मुगलों ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करने का काम किया, बार बार तोड़ने का काम किया, राम मंदिर को तोड़ने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ बना, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम बना, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है।
क्या बात है, जगन्नाथ की धरती से करें जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बीच वाले तो बड़े जोर से कह रहे हैं, ऊपर वालों, ऊपर वाले मेरे युवा साथियों, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। भाई और बहनों, ये केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर नहीं, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं, आज आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया है कि आज इन सभी स्थानों पर व्यापार और रोजगार के अवसर भी कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आज G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली। एक बंद हॉल में G20 प्रेसिडेंसी हो सकती थी, बट मोदी जी मेड इट श्योर दैट he ensured to do it in a big scale. Size and scales make a lot of difference, and that is why he picked up 60 cities of the country. 200 programs were held of G20, and art, culture and tradition of India was showcased to the world, and world was amazed looking at the beauty of India, the heritage of India. And listen one thing, have you noticed what? When Prime Minister Modi was hosting the Leaders Summit, I have a question to ask to all the youth of Odisha. मेरा एक सवाल है आप सबसे, जब प्रधानमंत्री मोदी G20 की मेन समिट में दुनिया के 20 बड़े देशों के नेताओं को रिसीव कर रहे थे और 39 ऑर्गेनाइजेशन और देशों के लोग वहां पर आए, तो जहां पर मोदी जी खड़े थे बैकड्रॉप पे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? कोणार्क व्हील केवल उड़ीसा के लोगों को नहीं, दुनिया के 207 देशों में दिख रहा था। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जिसने कोणार्क व्हील को बैकड्रॉप के साथ साथ एक एक व्यक्ति को बताया उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कोणार्क व्हील का महत्व क्या है। ये उड़ीसा से प्यार, ये अपनी सभ्यता संस्कृति से प्यार नरेंद्र मोदी जी को है। And that is why I wanted to raise this with the youth of the country, especially with the youth of Odisha. Whatever we do, a small gesture can make a lot of difference. और जब रात को डिनर होस्ट किया तब बैकग्राउंड में क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी का बैकड्रॉप, कि हिंदुस्तान में हजारों साल पहले भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी जब दुनिया भर के देशों के लोग यहां पढ़ने आते थे। धर्मेंद्र भाई, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। इतने बड़े देश के करोड़ों युवाओं को स्किल प्रदान करना और शिक्षा प्रदान करना, बिकॉज वी वांट टू सी द यूथ हु इज इक्विप्ड विद गुड नॉलेज एंड स्किल, एंड वी वांट टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया टू सर्व द कंट्री एंड टू सर्व द वर्ल्ड, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद धर्मेंद्र प्रधान जी. Utkal University must be very proud of, ma'am, you must be very proud of your student who has done extremely well in the national politics. And I'm sure I'm going to see many young leaders in future from here in various fields, whether you pick up politics, whether you pick up the social service, or you pick up the journalism, you pick up to become an entrepreneur. World is looking at India. World is looking at India with a great hope. And I'm sure the hope what they see in India and the India's leadership, we're going to fulfill that. हम उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे जो दुनिया को उम्मीद भारत से है। उतरेंगे नहीं उतरेंगे? अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उड़ीसा को आगे लेकर जाएंगे, हम अपना योगदान देंगे और हम अपने शहीदों को भी याद करते रहेंगे। मेरा एक निवेदन आप सबसे है, मैं एक चीज मांगने आया हूं। कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आप सोचते हैं कि कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता, यू वांट टू सी द चेंज, प्लीज बी द चेंज मेकर, बिकम द चेंज मेकर।
Pledge yourself, pledge to bring the change in that sector. मैं चाहता हूं अगर आपको लगता है शिक्षा में कमी तो आप अपनी ओर से उस क्षेत्र में काम कीजिए. लगता है स्किल्स देना है, स्पोर्ट्स में काम करना है, एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है. हम थोड़ा थोड़ा भी काम सब लोग करेंगे तो 140 करोड़ भारतीयों की ये ताकत है कि जब एक बार मन पक्का कर लेते हैं तो कुछ भी करके दिखा सकते हैं. और हम करके दिखाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे. और एक बात मैं और कहता हूं, हमने 9 सालों में बदल दिया है. आज से 9 साल पहले लोग कहते थे इंडिया इज द फ्रेजाइल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. एंड 9 years Modi has changed it and India has become the 5th largest economy of the world. 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए. हम कर सकते हैं, आगे भी करेंगे. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें धर्मेंद्र जी को सुनना है. इतना ही निवेदन करूंगा, एक क्षेत्र, any one area which you want to see the change, I am reminding it time and again, you have to work in that area for the next 25 years. ये अमृत काल की शुरुआत है और स्वर्णिम काल होंगे जब देश 100 साल आजादी के मनाएगा 2047 में. इन 25 सालों में आपको उस एक एरिया में बदलाव लाना है. आप अपना योगदान दीजिए, देश में आप वो बदलाव देखेंगे. और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस कार्यक्रम में कुर्सियां कम पड़ गई हो, पैर रखने की जगह ना हो और युवाओं में उत्साह इतना ज्यादा हो, उस राज्य के युवा और उस देश के युवा बदलाव लाकर दिखाएंगे, अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे. तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद. मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त अनुराग सिंह ठाकुर महोदयंकर ए प्रेरणाप्रद संबोधन पर आम कृतज्ञता निवेदन करुछु. Words will be short enough to express our heartfelt gratitude to Honorable Minister for his benign presence and for his inspiring words. एवं ए माटीरे जहाँकर कृतित्व एवं गरिमा विशेष भाव में समय कांथरे लिपिबद्ध रही मान्यवर मंत्री शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय जहाँकर आद्य यौवन कटिचे विश्व